Good afternoon, dear student. I Renu Kushwa, faculty of Applied Science Department in SIRTE. जैसा कि इंजीनियरिंग मैथ्स पार्ट 1 में हमने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक का नेम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये किस तरीके से मैथ्स में यूज किया जाता है, किस तरीके से हम डिफरेंशियल में इसको अप्लाई करते हैं, इसकी बेसिक एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से ये डेली लाइफ में यूज किया जाता है, अदर कोर ब्रांचेस में इसकी क्या एप्लीकेशन, इन सब के बारे में हम जानेंगे। This is a very IMP topic. This is a depend on the differential equation application part. So let me start. हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि टेंजेंट, नॉर्मल एंड कर्वेचर क्या होता है। तो आप देखिए, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, के.एस. राउड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 7th एडिशन। ठीक है, इन सब के बारे में आप जान सकते हैं। नेक्स्ट हो गया इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व एट अ गिवन पॉइंट कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व एट अ गिवन पॉइंट कर्वेचर। नेक्स्ट हो गया इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। The basic equation of a straight line is, we all are know, y is equal to mx plus c, where m is gradient dy upon dx, c is equal to intercept on the y axis, जैसा कि आपको ग्राफ के थ्रू दिखाई दे रहा है। Equation of a straight line, given the gradient small f of a straight line and one point x1 comma y1 through which it passes, the equation can be used in the form, और इक्वेशन हो जाएगी स्ट्रेट लाइन की y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, इफ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज m एंड द ग्रेडियंट ऑफ ए सेकेंड स्ट्रेट लाइन is m1 where two lines are mutually perpendicular, then formula is m dot m1 is equal to minus 1 and m1 is equal to 1, m1 is equal to minus 1 upon m. Equation of a straight line, tangents and normal to a curve at a given point, curvatures। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व एट अ गिवन पॉइंट। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है? द ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व y is equal to f of x at a point capital P with coordinates x1 comma y1 is given by the derivative of y, the gradient of the tangent at the point dy upon dx at x1 comma y1. The equation of the tangent can then be found from the equation y minus y1 is equal to m bracket में x minus x1, where m is equal to dy upon dx. दिस इज अ शो फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, जिस तरीके से आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हम टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व एट अ गिवन पॉइंट। नॉर्मल इज the gradient of a curve y is equal to f of x at a point capital P with coordinate x1 comma y1 is given by the derivative of y. The gradient of the tangent at the point is dy upon dx at x1 comma y1. The equation of the normal perpendicular to the tangent can then be found from the equation. The equation is y minus y1 is equal to m bracket में x minus x1, where small m is equal to minus का 1 upon dy upon dx. ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व एट अ गिवन पॉइंट, कर्वेचर। ठीक है, ये कर्वेचर की इक्वेशंस है और उसका डायग्राम के थ्रू, हमने ग्राफ के थ्रू बताया है कि कर्वेचर क्या होता है। The curvature of a curve at a point on the curve is concerned with how quickly the curve is changing direction in the neighborhoods of that point. Given the gradient of the curve at two adjacent points P and Q, it is possible to calculate the change in direction theta is equal to theta 2 minus theta 1. The distance over which this change takes place is given by the arc PQ, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। For small changes in direction, it's defined by del theta, and small the distance del s, the average rate of change of direction with respect to arc length is, then formula is del theta upon del s। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, आपको ग्राफ के थ्रू बताया है। A small arc PQ approximate to the arc of a circle of radius r, where arc PQ is equal to del s equivalent rs r del theta. So del theta upon del s equivalent 1 upon r, and in the limit as del s tends to 0, this become del theta upon del s is equal to 1 upon r, which is the curvature at P, r being the radius of curvature. So the radius of curvature capital R can be shown to the given by radius of curvature का जनरल फॉर्मूला होता है कैपिटल R is equal to 1 plus dy upon dx का होल स्क्वायर,
की होल पावर 3/2 डिवाइड बाय d2y अपॉन dx स्क्वायर। कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C इज लोकेटेड एट द पॉइंट h, k, देन फॉर्मूला इज h इज इक्वल टू x1 माइनस LP, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है, x1 माइनस r साइन थीटा, स्मॉल k बराबर y1 प्लस LC इज इक्वल टू y1 प्लस r cos थीटा। दिस इज रिप्रेजेंट बाय ग्राफिकल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? इवैल्यूएट द ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप सेटिस्फाइड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, derive the equation of a tangent, add a normal to a curve, evaluate the curvature and radius of curvature at a point on a curve, locate the center of curvature for a point on a curve. So thank you very much for लिसनिंग टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जाना कि किस तरीके से हम टेंजेंट और नॉर्मल लाइन को यूज कर सकते हैं, कर्वेचर्स क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, इसकी बेसिक एप्लीकेशन क्या है। दिस इज एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और डिटेल में बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। प्लीज टेक केयर, स्टे एट होम, हैव अ